let's start. I think further with our salary chapter discussion. I'm sharing my screen with all of you. First, let's revise what we were doing in our previous class. Okay. So in our previous class, we had started with our salary chapter, which is my income under the head salary, right? So I told you that yes, salary includes pension as well. So salary includes your pension. If it is received by you, so if the pension is received by you, then it is taxable under the head salary. And if it is received by your spouse, then it is taxable under the head other sources, right? And also, I had shared that there are total five heads of income. Number one, which is my income under the head salary. Second is your income under the head house property. Third is your income under the head business or profession. And fourth is your income under the head capital gain and income from other sources. So, if any of your income does not falling into these four categories, then obviously it will be transferred to this income from other sources. Okay. And since I said there are total five heads of income, so that means the first head which we are covering today is the salary chapter. I mean, income under that salary. Now, there's this one section called section 15, which is my charging section. And this charging section says that there should be employee employer relationship. Okay. So that means there should be some fixed agreement between two individuals, I would say, or maybe not individuals, I would say between an entity, or it can be either between an entity or an individual. So there should be some employer employee relationship should exist. You can either be working full time or maybe part time, it does not matter. But if it is your salary, if you're getting receive if you're receiving salary basically, then it should be taxable under the head salary only. Now, let's talk about suppose if you're working for two organizations altogether, like simultaneously working for two organizations, then that is called moonlighting. Um, Professionally, if we say we call it as moonlighting. So, in case of moonlighting as well, if you're receiving salaries from two organizations, even if you're working for them simultaneously, then it should be taxable under that salary only. Salary is taxable as due or received, whichever is earlier. So, due or received means, like I said, for the March month salary, you generally receive it on 10th of April. So, due was made on the month in the month of 31st March. I mean, in the month of March. However, I have received the same on 10th of April. So, due or received, whichever is earlier, that means the salary which you are going to receive in the month of April, this it should be taxable in the year 24-25 only. And now we obviously, as you are aware, that we do have this new financial year, which is financial 25-26 currently going on. Now, suppose if you have received 2 months salary in advance in the month of say, I took this example of Govind. Govind received 2 months salary in advance in the month of March only. So the advance salary is also taxable in the year in which it is received. So if you have received, if the advance salary is received in the year in which it is received. So suppose if we have received advance salary pertaining to April and March 25 month, May 25 month, then still it will be taxable in the year in which it is received. Let's say it is received in March 25. So that means, as I told you, that okay, we are going to tax 2 months salary. I mean, extra. So 14 months salary would be taxable in the year in this financial year 24-25. So this is something which we have covered. Now, then we also discussed the difference between the freelancing and the moonlighting, and I hope it was clear. Freelancing, there's no regular job. You are available anytime as per the requirement. However, for the for the moonlighting, or maybe for any, I would say, if there's an employer-employee agreement, you should be available for your organization at a particular time. So this is fixed timelines. However, if I like, for example, you can say that I am the freelancer. I'm working for only 3 hours per week for Set India Biz. So that way, so what I'm doing, these are basically my professional freelancing activities, right? So whatever the next comes, if there's a partnership firm, and in the partnership firm includes LLP as well. So any salary received by partners of a partnership firm, it is taxable under the head business or profession. ओके, इट इज टैक्सेबल. अब आप बोलो कि पार्टनर्स को सैलरी मिला है तो वो भी सैलरी में जाएगा. द आंसर इज नो. सो वट एवर द रिमरेशन द पार्टनर्स आर रिसीविंग, इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड बिजनेस और प्रोफेशन. सो ये एक तरीके से यू कैन कंसिडर इट एज एन एक्सेप्शन ओनली. Okay, now what about so
If I conclude this discussion, then I can say the taxability of salary, it is due or received whichever is earlier. Advance salary, when it is received, it is going to be taxable in that year. Arrears of salary means वो जो हमने ट्रेड यूनियन का ये जो डिस्प्यूट्स वगैरह होता है ये कंसिडर किया था. So ऐसा है, तो it will be taxable in the year in which it is received. ओके. नाउ इसके बाद अब हम करते हैं एमपीज एंड एमएलएस का जो भी सैलरी वो लोग रिसीव करते हैं. सो एमपीज एंड एमएलएस वॉट एवर द सैलरी दे आर रिसीविंग इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेस. Now, as I told you, let's discuss about the salary slip of Set India Biz. So this is the discussion we are going to do today. So in your salary slips of Set India Biz, you can see that there's this basic salary, there's this house rental allowance, transport allowance, fixed allowance, performance allowance can be there in the earning side. However, in the deduction side, if you see your salary slip, then it would be PF, TDS, ESIC, professional tax, labor welfare fund. Okay, so these are the in the deductions category. If you see the salary slip of Set India Biz, however, if you see the earning side, then obviously these are the components which you are actually getting. Now let's talk about the taxability of these components. And as I told you, the basic salary is fully taxable. So whatever the amount you're receiving in your basic salary, it is going to be fully taxable. Okay. So it does not matter. And basic is basically the base salary. What is basic salary? Why it is required? It is my base salary for all other calculations. So basically, if you see the government entities का जो employment का भी आता है ना, economic times वगैरह में if you review them, then you will realize, okay, they are also basically considering the base salary for their purpose. कि base salary होगा और base salary के ऊपर, like you must have seen this 21,999 plus the grade A, maybe 90,000 plus grade B. You must have seen these type of job posts. If you have seen the same, then in that case you will realize, okay, these are the so what is this 21,000? What is this 19,000? It is basically nothing. It is your base salary. So whatever the say retirement benefits you're going to conclude, whatever the perquisites you are going to conclude, you should consider that base salary as part of your calculations. Okay. So basic salary is your base salary and it is going to be fully taxable. Next comes your DA. DA is something DNS allowance. Okay. And as I told you, DA is received by the गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ओनली. तो हम लोग इतने खुशकिस्मत तो नहीं है प्राइवेट एम्प्लॉयज वाले कि हमें डीए मिले, बट मे बी इफ देयर इज एनी एंटिटी हु इज गिविंग डीए देन दैट वुड बी like I would say that is perfect. However, in most of the private limited company or private listed companies, I would say, be it private limited or listed companies, it does not matter. Most of the private employers, they do not provide you the DA. It is your DNS allowance, so it is going to be fully taxable. However, as I told you that there are two types of DAs. One is your in terms and second is your not in terms. Now, in terms means that it is being part of retirement benefits. Not in terms means no, it is not being part of retirement benefits. In terms means, as I said, it is part of retirement benefits. What does that mean? That whatever the calculations we are going to do, let's say in for gratuity, maybe for HRA, etc. So we will include the same for our calculation purpose. However, not in terms that we can exclude it. Until unless it is mentioned in the formula, then that would be a different scenario. Otherwise, we need to exclude the same for our calculation purpose. Then we came to this HRA part, okay, and HRA for HRA is your house rental allowance. So if you're receiving HRA, as you can see it in your salary slip as well, you are receiving the HRA, which is your house rental allowance. You will get the exemption under section 1013A, and this exemption is basically out of these three conditions, out of the three conditions, whichever is lower is going to be your exemption amount. Okay, so the lower amount of these three conditions, number one, it is your HRA received. HRA received, whatever the HRA you're receiving, you need to compare the same with rent paid minus 10% of salary. Shivansh, I'm just answering your question in some time. Okay. So you need to compare the same with HRA received versus rent paid minus 10% of salary and versus 40% of salary or 50% of salary. You need to compare the same. 50% of salary needs to be taken when it is metro city, and for this metro city is Delhi, Mumbai, Kolkata, and Chennai. Okay, Delhi, Mumbai, Kolkata, and Chennai. So these are my metro cities. Now you will say, what about Bangalore? Bangalore is a metro city for you guys, right? But from the income tax point of view, it is not my metro city. Okay, so that is something which you need to exclude the same in terms of while calculating the or I would say while solving the HRA questions. Okay. Now, what is the definition of salary? As I
said definition of salary is basic salary plus DA incomes plus turnover commission. Okay, basic salary plus DA incomes plus turnover commission. What about the bonus commission or say support commission if you're receiving? Shall we include the same? The answer is no. It should always be turnover commission. Are you getting my point? टर्नओवर कमीशन ही लेना है. व्हाट अबाउट द बोनस कमीशन, सपोर्ट कमीशन, ये सब भी मिलता है ना अपने को, तो वो सब नहीं लेना. ठीक है. Okay, so with this we had solved many questions. I mean 2 questions in our previous class. So there's this gap always. So let's proceed further with our question. एक मैं दे देती हूँ आप लोगों को. So this is your HRA related question. I request every one of you to please solve the same. And Shivansh, I will be responding to your query once this question is over. Okay. Question. Let's say there's an entity which is giving basic salary of rupees 50,000 per month. DA is rupees 10,000 per month. 20% being part of retirement benefits. Transport allowance rupees 5,000 per month. Fixed allowance rupees 15,000 per month. Support commission rupees 1 lakh. And turnover is rupees 1 crore. Commission on it at the rate of 2%. Okay. सबसे जरूरी चीज HRA तो अभी तक रिसीव नहीं करा मैंने. HRA received rupees 25,000 per month. Okay. Now rent paid rupees 30,000 per month. Hyderabad city. ठीक है. You need to compute HRA. Please compute taxable HRA. This is the question for every one of you. Please compute taxable HRA. Govind is saying 12,000 is my taxable HRA. Okay, we will see. Let's wait for other answers as well. Please share the annual answer. एक बार आप लोग annual answer ही share करो प्रवीण, और इसको एक बार multiply करके एक बार share करो. 277,680. Okay. हाँ जी everyone. हुआ या नहीं हुआ? सुदीप, संतोष, राजीव. Sumit is saying 60,000. Jitendra, everyone, please try to keep your answer. सबका नहीं हुआ या हो गया? I'm starting with the solution now. Okay. I think most of the students are getting this 60,000 as the answer. Let's start with our solution. Okay. We need to calculate this taxable HRA. Okay. I request every one of you to please look into the screen, please. Okay. चलिए start करते हैं. Screen की तरफ देखिए. सुदीप, आपने कैलकुलेट नहीं करा because I was expecting some answer from you. नहीं मैंने कैलकुलेट किया था, मुझे गलत लग रहा है. Okay, ठीक है. So in order to calculate the taxable HRA, obviously we have to consider this HRA received. My HRA received is 25,000 multiplied by 12, which is 3 lakh rupees, right? And my pen is not working. जब भी काम करने बैठे, I hope now it will work. 3 lakh, right? Now I need to reduce exemption under section 1013A. Okay, exemption under section 1013A. So number 1 is your HRA received. So as you can see, your HRA received is 3 lakh.
Second is your rent paid minus 10% of salary. So rent paid is 30,000 per month, right? So 30,000 multiplied by 12 minus 10% of salary I need to calculate. So I will calculate the same. Third is your 40 or 50% of salary. So please tell me, here I will take 40% or 50%? At least answer now. 40% लेंगे? 40%. Now let's talk about salary, the definition of salary. The definition of salary is my basic salary plus DA in terms plus turnover commission, right? So my basic salary, as you can see, it is my 50,000 rupees per month. So it is 50,000 multiplied by 12. DA in terms. So I'm receiving DA 10,000 rupees per month, 20% being part of retirement benefits. So can I say 10,000 multiplied by 20%? So we basically 2,000 rupees per month is my retirement benefit, right? Multiplied by 12. Then turnover commission, as you can see, I need to ignore this. Turnover is 1 crore, commission is 2%. So turnover is 1 crore, commission is 2%. So it would be my 6 lakh rupees. It is 24,000 rupees and it is 1 crore का 10% 10 lakh आएगा, 2 lakh rupees आएगा ये 8,24,000. So 8,24,000 and 40% of 8,24,000. Right? So 3,60,000 minus 82,400. So it would be 277,600 and 40% of salary is 329,600. So whichever is lower is your 277,600. फिर हम इसको माइनस कर देंगे 3 लाख माइनस करेंगे इसमें से 22,400 would be my answer. Taxable HRA. Are you getting my point? Is that clear to every one of you? नहीं मैम, मुझे और एक बार समझाना है, एक बार एक्सप्लेन करना है. इसमें क्या समझ में नहीं आएगा, आप मुझे ये बताइए. हाँ, बेसिक है आपका 50,000, राइट? तो साल में 12 साल में उसने 6 लाख रुपए अर्न किया, करेक्ट? हाँ. उसके बाद डीए का जो कॉन्सेप्ट है, डीए में कॉन्सेप्ट ये है, अगर 20% ले रहे हैं और 10,000 करके ले रहा था, तो 20% के ये 10,000 का 20%, राइट? तो 1 लाख था, 1 लाख है ना मैम वो. डीए का जो कॉन्सेप्ट है 10,000 है आपका इंटू 20%. 20% में आपका यहाँ पे हो रहा है आपका 10,000 का 20%. 2,000 हो रहा है. 2,000 इंटू 12 तो 24,000 हो गया आपका. हाँ. ठीक है. और ट्रांसपोर्ट अलाउंस इसमें जो 5,000 बोलता है, यहाँ पे ये कैलकुलेट होगा नहीं होगा. ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो मिल रहा है उसको 5,000 करके सब इग्नोर करना है. ट्रांसपोर्ट अलाउंस इग्नोर करना है. फिक्स्ड अलाउंस जो 15,000 है वो भी इग्नोर करना है. हाँ. उसके बाद उनको जो कमीशन मिला था 1 लाख 10 लाख था आई थिंक. सॉरी, इसमें 1 लाख था कमीशन. हाँ जी. 1 लाख कमीशन. ओके, ये भी इग्नोर करना है. हाँ, क्योंकि ये टर्नओवर कमीशन ही इसलिए इग्नोर कर दिया. और कमीशन ऑफ जैसे टर्नओवर था, टर्नओवर 1 करोड़ का अगर 2% है उसमें 2 लाख रुपए हो रहे हैं, वो भी इग्नोर करना है. मैं तो करना है ना, कमीशन टर्नओवर 2 लाख रुपए. ओके, 2 लाख रुपए. यस, ओके, ये कैलकुलेट किया आपने 2 लाख रुपए. हाँ. 2 लाख 2 लाख 1 मिनट. 2 लाख एचआरए मैम. एचआरए इग्नोर करना है क्योंकि एचआरए के लिए तो हम ये सब कैलकुलेट कर रहे हैं. ओके, एचआरए. और रेंट भी इग्नोर करना है. रेंट जो पे कर रहे हैं वो 30,000 पर मंथ पे कर रहे हैं, ठीक है. और ये तो 12 मंथ में उन्होंने 3,000 ये जो पे कर रहे हैं वो आप 2 लाख पर्पस के लिए, बट वो सैलरी का पार्ट नहीं, क्योंकि ये तो मैं पे कर रही हूँ. ओके, तो टोटल जो हो रहा है मैम, ये हो रहा है आपका 8,24,000 रुपीज टोटल. हाँ जी. 8,24,000. और उसमें आप 8,24,000
उसके बाद में मुझे थोड़ा सा ये चाहिए, क्लैरिटी चाहिए। 8 लाख टोटल हो रहे, हाँ 8,24,000 हो रहे हैं। ठीक है, सैलरी निकल गई मेरी 824। अब ध्यान से आते हैं, एचआरए मुझे पूरे साल में कितना मिला एम्प्लॉयर से? 3 लाख रुपए का। हाँ 3 लाख रुपए का। ठीक है, अब मुझे एग्जेम्पशन निकालनी है। तीन कंडीशंस हैं। वन इज योर एचआरए रिसीव, सेकंड इज योर रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, थर्ड इज योर बेस्ड ऑन सिटी 40% ऑफ सैलरी हमने यहाँ पे ले लिया है। ओके। एचआरए रिसीव इज 3 लाख रुपए हमें पूरे साल में मिला, यही वाला अमाउंट है हाँ ना? हाँ रेंट पेड, मैं कितना रेंट पे करता हुआ आया हूँ? 30,000 रुपए का। हाँ देखो रेंट पेड 30 पर मंथ, तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 12 हो जाएगा, हाँ माइनस ऑफ सैलरी। सैलरी मैंने 824 निकाली है, वही आ गया। हाँ तो ये आ गया 2,600। ठीक है, ओके मैम। 40 सैलरी मेरा क्या होगा? 40% ऑफ 824,000। तो 40% ऑफ 8,24,000 हमने किया, ये आ गया 329,600। ठीक है, अब ठीक इसमें है। से लोअर कौन सा है? विच इज 277,600। ये 277। मेरा, ठीक है, ये मेरा रेंट पे एग्जेम्पशन का अमाउंट। ओके। हाँ, तो जो मैंने रिसीव करा उसमें से मैंने एग्जेम्पशन माइनस कर दी, इतना मेरा टैक्सेबल हो जाएगा 22,400। ओके। और ये 22,400 भी किन के लिए होगा? ये होगा उनके लिए जो जो ओल्ड टैक्स रिजीम वाले। ठीक है। न्यू टैक्स रिजीम वाले तो क्लेम ही नहीं कर सकते बेचारे ना। हाँ क्योंकि उसमें तो सारी चीजें कॉन्सेप्ट है, 12 लाख तक का ये है कॉन्सेप्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद जो भी होगा टैक्सेबल इनकम हो जाएगा। 12 लाख वाले तो चलो अब इस साल से 25-26 से, लेकिन हाँ अगर 24-25 का लो तो वो तो 7 लाख तक की है। तो हाँ मतलब हाँ हिस्ट्री में अलाउ नहीं होता बेसिकली। ठीक है, ठीक। एवरीवन प्लीज टेल मी, इज इट क्लियर और नॉट? Yes, ma'am. ओके, नाउ आई एम स्टार्टिंग विद फ्यू मोर कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, सो देखो मैं क्या कर रही हूँ, मैं पहले सेट इंडिया बिल्स के सैलरी स्लिप लेते हुए चल रही हूँ। ओके, फिर उसके बाद मैं बाकी कंपोनेंट्स करूंगी। सो एचआरए, कैन आई से इट इज पार्शली एग्जेम्प्ट? Okay, based on your calculations, it would be partially exempt. What about the transport allowance and the fixed allowance you are receiving in your salary slip? It is fully taxable. Fully taxable. Whatever the amount you are receiving in this category, in this component, it is fully taxable. What about the performance incentive? It is fully taxable. पूरा का पूरा taxable. But somewhere back in 2017-18 you would find कि ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस वगैरह ना, इसका आपको एग्जेम्पशन मिलता था। ठीक है, 21,600 का कुछ ऐसे करके आपको मिलता था, मेडिकल का भी मिलता था। तो गवर्नमेंट ने ना एक स्टैंडर्ड डिडक्शन निकाली। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय दिस स्टैंडर्ड डिडक्शन? जो सबके लिए होगा 50,000। यस, तो अगर कोई पर्सन ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करता है तो उसके लिए तो 50,000 है। अगर कोई पर्सन न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करता है तो उसके लिए 75,000। And this is applicable for financial year 24-25 and 25-26 as well. Now you didn't ask me one question कि what is the difference between, sometimes I'm using this word deduction and sometimes I'm using this word exemption. Are you getting my point? कभी तो मैं deduction बोल रही हूँ, कभी मैं exemption बोल रही हूँ. What is the difference between these two terms? Is anyone aware about the same? हाँ जी, इसका मीनिंग पता है किसी को? यहाँ पे तो मैंने डिडक्शन वर्ड यूज करा स्टैंडर्ड डिडक्शन में, और यहाँ ऊपर मैं कर रही थी यहाँ पे एग्जेम्पशन वर्ड. So what is the difference between these two terms? So see, exemption का मतलब है कि ये जो पर्टिकुलर अमाउंट है ये आपकी इनकम का पार्ट ही नहीं है. ओके, the amount is not part of your income. ये आपकी इनकम का पार्ट ही नहीं है. डिडक्शन मतलब कि
इनकम का पार्ट तो है, बट वी आर अलाउइंग यू सम बेनिफिट. Okay, in the name of deduction. We are allowing you some benefit in the name of deduction. तो मतलब एग्जेम्पशन का मतलब है कि ये आपका इनकम का पार्ट ही नहीं बनेगा. डिडक्शन का मतलब आके आपकी इनकम का पार्ट है, बट हम आपको चलो बेनिफिट दे रहे हैं, चलो 75,000 का बेनिफिट ले लो या 50,000 का बेनिफिट ले लो हमारी तरफ से. So this is the main or basic difference between the exemption and deduction. Is that clear to every one of you? मैम एग्जेम्पशन तो चलो प्रिस्क्राइब होता है कि कहाँ पे कैसे एग्जेम्प्ट होगा, बट डिडक्शन में क्या स्टैंडर्ड डिडक्शन जो हम लेते हैं 50,000 या 75,000 का, इज देयर एनी कैलकुलेशन कि हम मतलब गवर्नमेंट ने जो दिया है सभी के लिए कि ऐसे ही दे दिया मतलब 50,000 और 75,000 का? कोई कैलकुलेशन नहीं है, बस ऐसे ही मान लो 50,000 जस्ट एक लिमिट दे दी. अब सपोज करो मेरी सैलरी 40,000 है, तो मुझे बताओ, एज्यूम कर रही हूँ मैं 40,000, वैसे तो टैक्स भी नहीं बनेगा 40,000 में. मुझे बताओ डिडक्शन कितने की मिलेगी, 50,000 की या 40,000 की? माई सैलरी इज 40,000. 40,000. तो जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो कितने की मिलेगी मुझे बताओ मुझे. इसमें मैक्सिमम 50,000 है ना स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो जो हमारा कम होगा वही विच एवर इज लोअर वाला सीट होगा ना. यस. सो क्योंकि मेरी सैलरी 40 है तो रिस्ट्रिक्ट कर दूंगी मैं 40 तक ही. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज दैट क्लियर? यस मैम. ज्यादा नहीं क्लेम कर सकते. अब बोलो कि 10,000 रुपए का मेरे को लॉस हो गया, स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिल पाई ना, ऐसा नहीं है. जितनी इनकम है मेरी उतने में से थोड़ा बहुत रिड्यूस कर सकते हो. ओके, इज दैट क्लियर टू एवरीवन ऑफ यू? यस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिवाली गिफ्ट्स. कुछ ऑर्गेनाइजेशंस देती हैं दिवाली पे गिफ्ट्स आपको, राइट? कुछ वाउचर्स दे सकती हैं. कुछ ऑर्गेनाइजेशंस आपकी बर्थडे पार्टीज पे वाउचर्स भी प्रोवाइड करती हैं. देयर आर सो मेनी आई वुड से गिफ्ट्स व्हिच आर अवेलेबल टू यू गाइस. अगर मतलब ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन में डिपेंड करता है, ठीक है? तो अब मुझे एक चीज बताओ, जैसे दिवाली गिफ्ट्स मिले, तो गिफ्ट्स क्या ये मेरे टैक्सेबल होते हैं? कभी किसी ने ये सोचा है गिफ्ट्स टैक्सेबल होते हैं या नहीं? अभी तक तो हम ये सोचते हुए आए हुए कि गिफ्ट्स टैक्सेबल नहीं होते. बट हैव यू हियर्ड अबाउट दीज न्यूज की एक एम्प्लॉयर है, उसने अपने एम्प्लॉयज को कार्स गिफ्ट कर दी, एंड एक एम्प्लॉयर मैंने सुना था कि उसने अपने एम्प्लॉयज को घर गिफ्ट कर दिए. यस मैम. हैव यू कम अक्रॉस दिस टाइप ऑफ न्यूज? यस मैम. जहाँ पे एक एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉयज को दिवाली पर कार्स गिफ्ट करी हैं और एक ने घर गिफ्ट करी हैं, ठीक है? तो अब ये जो दिवाली गिफ्ट्स हैं, इफ वैल्यू इज अप टू 5,000 then it is exempt. However, let's say मैंने आपको एक डिनर सेट दिया दिवाली पे, जिसकी कॉस्टिंग ही 8,000 रुपए है, ठीक है? 5,000 से ऊपर हो गया, तो ये पूरे के पूरे 8,000 रुपए आपकी टैक्सेबल इनकम में इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है? अब आप बोलो ये तो मॉनेटरी फॉर्म में नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. डिनर सेट है, टैक्सेबल इनकम में इंक्लूड हो जाएगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम. कैलाश गबरा वो क्या होता है? नाउ आपकी शादी हुई, ठीक है? शादी पे एम्प्लॉयर आए आपके और उन्होंने आपको गिफ्ट दिया. अच्छा, कभी आपने ये सोचा कि शादी पे ये जो शगुन के लिफाफे मिलते हैं और लोग कमा लेते हैं अच्छा खासा 1,00,000 रुपए भी, 50,000 तो मिनिमम कमा ही लेते होंगे, तो क्या ये इनकम टैक्सेबल होती है? नहीं मैम. क्यों नहीं होती? मगर वेडिंग में जो भी गिफ्ट या मॉनेटरी हो या नॉन मॉनेटरी हो उसके तो शायद मेरे हिसाब से वो एग्जेम्प्ट होती है. ओके, तो शादी में जो भी आपको गिफ्ट मिलते हैं, एग्री, वो आपका एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है? बट शादी में आपका एम्प्लॉयर भी अटेंड करा, एम्प्लॉयर ने भी आपको शादी का गिफ्ट दिया, तो वो एग्जेम्प्ट नहीं होगा. सो इवन इफ यू हैव रिसीव्ड अ गिफ्ट फ्रॉम योर एम्प्लॉयर ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज, स्टिल इट वुड बी टैक्सेबल, ठीक है?
लेट मी टेल यू, शादी एक बहुत बड़ी ऐसी चीज है जिसमें आप ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि जो भी आपके गिफ्ट्स हैं वो सारे एग्जेम्प्ट है। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक पॉलिटिशियन है, उसके पास 100 करोड़ का कैश पड़ा है, लेट्स अज्यूम। किसी की शादी हुई, उसने उसको 50 करोड़ रुपए गिफ्ट में दे दिए कैश में, उस बंदे ने जमा भी करा दिए अकाउंट में, ये बोल के कि मुझे तो शादी में मिला है ये पैसा। ओके, so I still remember I was teaching to these CA final students and they were saying कि मैम ब्लैक मनी को कन्वर्ट करने के लिए शादी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, हम मल्टीपल मैरिजेस कर सकते हैं एंड देन वी कैन इजीली कन्वर्ट दी ब्लैक मनी टू व्हाइट मनी। तो yes it can be a text क्या नहीं, मैं उसको डिनाई नहीं करूंगी because it is exempt। okay, so but yes, so whatever the amount you're receiving in your marriage, that is exempt। शगुन लिफाफा सब कुछ exempt, ठीक है। चलिए, now Diwali gifts is covered। uh, same with vouchers, if you're receiving Amazon vouchers etc, it is exempt। okay, Amazon vouchers or not Amazon vouchers, I would say vouchers only, just why would I restrict the vouchers to Amazon only, बाकी entities भी तो हैं जो voucher देती हैं, तो जो भी आपका vouchers है वो आपका exempt होता है। Now, let's talk about PF. Okay, PF stands for Provident Fund। Okay, सबसे पहले शिवांश का एक क्वेश्चन आया था। ओके, शिवांश का क्वेश्चन आया था एक कि मेरी बेसिक सैलरी कितनी होनी चाहिए, व्हाट शुड बी माय बेसिक सैलरी, टोटल सैलरी का। ओके, सो सी देयर इज दिस वन, पहले क्या था मैं बता देती हूँ कि बहुत सारे ना एक्ट बने हुए थे, लेबर वाले जो एक्ट होते हैं ना बहुत सारे, वो बहुत सारे बने हुए, तो उनको हटाकर एक एक्ट लेकर आया गया। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ओके, उनको हटाकर एक एक्ट लेकर आया गया जिसको हम बोलते हैं कोड ऑन वेजेस एक्ट। ठीक है, और 2-4 एक्ट और हैं इंडस्ट्रियल वाले। ठीक है, अब उसमें जो उस एक्ट में लिखा है वो ये बोलता है कि आपकी जो बेसिकली सीटीसी है, सीटीसी इज योर कॉस्ट टू कंपनी, उस सीटीसी का 50% शुड बी योर बेसिक सैलरी। ठीक है, सीटीसी का 50% इज योर बेसिक सैलरी। डू यू गाइस नो द डिफरेंस बिटवीन द ग्रॉस सैलरी एंड योर सीटीसी? पहले तो मुझे बताओ, ग्रॉस सैलरी और सीटीसी का डिफरेंस पता है आपको क्या है? अगर नहीं पता तो वो मैं पहले एक्सप्लेन करती हूँ, फिर मैं इस पे दोबारा से आऊंगी। नहीं पता मैम, वो एक्सप्लेन करो। ओके, ठीक है। तो सपोज करो इफ यू आर अपीयरिंग फॉर एन इंटरव्यू, ओके, एंड वो बोलते हैं कि हम आपको सीटीसी ये ऑफर करेंगे। लेट्स से जैसे मैं जब सीए बनी थी, ठीक है, तो जब मैं सीए बनी थी तो मेरा आईसीआईसीआई बैंक में जॉब लग गई थी। तो आईसीआईसीआई बैंक में ऑब्वियसली सीए फ्रेशर का जो हमारा सैलरी का इनिशियल पैकेज था वो था 8 लाख रुपीज या 10 लाख रुपीज कुछ ऐसे था। ठीक है, हांगकांग ब्रांच के लिए मेरा जॉब लगा था, तो उन्होंने फिर मुझे ऑब्वियसली ऑफर लेटर देते हैं वो लोग, है ना। ऑफर लेटर जब भी आप किसी कंपनी से रिसीव करते हो तो नॉर्मली यू विल फाइंड दैट ऑफर लेटर वुड बी लाइक दिस। सो उसमें होता है बेसिक सैलरी, फिर अगर डीए कंपनी दे रही है तो प्राइवेट कंपनीज नहीं देती हैं। ठीक है, तो अगर डीए दे रही है तो ठीक है, नहीं तो एचआरए होता है फिर, और फिर अलग अलग अलाउंसेस होते हैं, मैं उसको स्पेशल अलाउंसेस लिख देती हूँ फॉर अ टाइम के लिए। ठीक है, इन स्पेशल अलाउंसेस को ऐड करके ये बनती है मेरी टोटल सैलरी। ठीक है, मैम इसमें पीएफ एंड ईएसआईसी वाला भी तो इंक्लूड होगा ना, मतलब, या ओएचआरए के अंदर इंक्लूड है? ना ना ना, ये सब इंक्लूड नहीं होता है इसमें। अब मैं बताती हूँ क्या होता है। ठीक है, ये होती है मेरी टोटल सैलरी। अब उसमें से लेस होता है, सॉरी, लेस कर रही हूँ, पूरा पीएफ ईएसआईसी में अभी इंक्लूड कर रही हूँ, गिव मी अ सेकंड। ये हो गई मेरी टोटल सैलरी। ठीक है, अब इस टोटल सैलरी में हम ऐड करते हैं एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ईएसआईसी।
ठीक है, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ESIC। फिर ऐड करते हैं एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स PF, ये भी एम्प्लॉयर है। ओके, दोनों एम्प्लॉयर है। लेट्स से आपका 1800 का PF डिडक्ट होता होगा, ठीक है, ये भी ऐड हो गया। फिर अगर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, जैसे मेरा ICICI बैंक में मिला था, तो वो लोग ग्रेचुटी भी डिडक्ट करते हैं। ग्रेचुटी का अमाउंट भी हमारी सैलरी से ही डिडक्ट करते हैं, ठीक है। फिर ऐड कर दो परफॉर्मेंस बोनस, जो लेट्स से बोला जाता है कि से 10% ऑफ योर सैलरी है, एज्यूम करते हैं, ठीक है। ये होती है मेरी CTC, ठीक है, दिस इज माय CTC। नाउ अब मैं आपको कुछ चीजें बताती हूँ इंटरनली, लाइक हाउ what is the difference between CTC and your salary, okay? And most of the individuals would be of the opinion कि यार मेरे को CTC तो से मेरा पैकेज तो लगा है 10 लाख रुपए का, बट जब मेरा इन हैंड आ रहा है वो बहुत कम आ रहा है। कभी किसी को ऐसा लगा है या लग सकता है? ऐसा लगा है कभी किसी को? हाँ, पहले लगता था जब पता नहीं था मैं, आज लगेगा स्टार्टिंग में। हाँ, तो CTC अब मेरा है से 10 लाख का, लेट्स से 10 लाख का मेरा CTC है, और सैलरी तो मेरी से 6 लाख रुपए की ही है, ठीक है। So let me tell you, when if you are receiving an offer letter from an organization, so CTC is your cost to company, कि कंपनी आपके ऊपर इतना खर्चा करेगी, ठीक है, कंपनी आपके ऊपर इतना खर्चा करेगी, इट इज माई कॉस्ट टू कंपनी, कंपनी आपके ऊपर इतना खर्चा करेगी। अब इसमें मेरा जो कंट्रीब्यूशन मैं आपको ESIC के लिए दे रहा हूँ या PF के लिए दे रहा हूँ, ग्रेचुटी वाला देखो, अब इसमें क्या है, ग्रेचुटी वाला क्या है, ग्रेचुटी आपने 5 साल काम करा तो ठीक है, नहीं करा तो मैं तो नहीं करूंगी ये वाला खर्चा, राइट। सेकंड, परफॉर्मेंस बोनस, मुझे आपकी परफॉर्मेंस बिल्कुल पसंद नहीं आई, भले ही मैंने 10% लिखा हो, सब्जेक्ट टू कंडीशंस, मैं आपको परफॉर्मेंस बोनस हो सकता है 2% ही दूं या 5% दूं, ओके, बट कंपनी ये मान के चल रही है कि मैं मैक्सिमम इतना खर्चा करूंगी, ठीक है। सो इन दिस केस आपकी जो एक्चुअल में सैलरी है वो है 6 लाख रुपए की, योर एक्चुअल सैलरी है 6 लाख रुपीज ओनली, ठीक है। और उस 6 लाख रुपीज में बेसिकली इसी के ऊपर आपका टैक्स बनता है, CTC के ऊपर टैक्स नहीं बनता, इसके ऊपर टैक्स बनता है। अब इस 6 लाख रुपीज में भी, ठीक है, मतलब इस टोटल सैलरी में भी हम आपको डिडक्ट करेंगे एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स PF, हम आपका PF, क्योंकि ये तो आपकी सैलरी है ना, आपका कॉन्ट्रीब्यूशन आपकी ही सैलरी से डिडक्ट करेंगे, ओके। और TDS कुछ बनता होगा तो वो डिडक्ट करेंगे, ESIC का कुछ पोर्शन बनता होगा तो वो डिडक्ट करेंगे, आपके केस में लेबर वेलफेयर फंड है तो वो भी, और प्रोफेशनल टैक्स है तो वो भी, ओके। ये सब डिडक्ट करने के बाद आपके पास जो भी है वो बचा कुचा आपके पास आ जाए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इज दैट क्लियर? यस मैम। सो जब बेसिकली तो जब भी आपसे कुछ जैसे एक होता है ना कि से आप कुछ देखो अपना ऑफर लेटर वगैरह, सिंपल सा आपको बस ये करना होता है कि आपको ये वाला पार्ट देखना होता है और इससे डिसाइड करना होता है मेरे पास कितना इन हैंड आएगा, ओके। मतलब उस मोमेंट पे लाइक पर मंथ का, मतलब वो ऑब्वियसली पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, अनटिल कोई मतलब, ठीक है। अब जो नया वेजेस एक्ट है उसके हिसाब से CTC का 50% शुड बी माय बेसिक सैलरी, ओके। बट क्या ये जो कंडीशन है ये मेरी अभी एप्लीकेबल हुई है? द आंसर इज नो, अभी ये प्रिवेल नहीं कर रही है मार्केट में। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसका 50% कर दूंगी ना CTC का, अगर मैं CTC का बेसिक सैलरी 50% कर दूंगी तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को प्रॉब्लम है इससे। व्हाई? क्योंकि मेरी पूरी ग्रेचुटी की कैलकुलेशन हो या मेरी कोई अदर कैलकुलेशन हो, सारी बेसिक सैलरी पे डिपेंड करती है और फिर मेरे लिए कॉस्टिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो अभी ये जो कंडीशन है ये एप्लीकेबल नहीं है, बट इन फ्यूचर क्योंकि बहुत सारी बड़ी बड़ी एंटिटीज ने भी इसके ऊपर एक वो उठाया है कि लाइक एक होता ना प्रॉब्लम है इसके ऊपर, तो दैट इज द रीजन। ये से अगर आप अपना सेट इंडिया बिज का भी देखोगे तो हो सकता है वो मैच ना कर रहा हो, तो अगर वो मैच नहीं कर रहा तो वो क्या गलत है? द आंसर इज नो, बिकॉज लीगली वी आर फॉलोइंग द करेक्ट, जो भी हमारे लिए सही है ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है।
तो हो सकता है आपकी सीटीसी का 20% ही आपका बेसिक सैलरी हो, या 10% ही हो, या 5% ही। इज दैट ओके? इज दैट क्लियर? ओके, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करते हैं कितना परसेंट बेसिक रखेंगे। Exactly. हाँ, सो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन आप लोग डिसाइड करते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ये नहीं है कि मेरे को तो 50% ही रखना है या 20% ही रखना कोई है। स्टैंडर्ड रूल है मैम इसका? स्टैंडर्ड रूल, स्टैंडर्ड रूल गवर्नमेंट ने बनाना चाहा, 50% रखना चाहा, बट अभी बहुत सारे लोग एग्री नहीं करते हैं इसके लिए, ठीक है, क्योंकि कॉस्टिंग हमारी बहुत ज्यादा आ रही है। ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो, क्योंकि कॉस्टिंग बहुत ही ज्यादा हाइयर साइड पे है, ठीक है। तो इज दैट क्लियर शिवांश? आपकी क्वेरी क्लियर हो गई? सो मे बी फ्यूचर पर्सपेक्टिव की वजह से वो 50% हो सकता है, अभी 20-30 या 10% भी है तो ओके है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। So legally we the all organization are at मतलब वो सही कर रही है, ठीक है। Now we were talking about PF. PF is your provident fund. Now what happens? Whatever is your salary, उस सैलरी में पीएफ का एक होता है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, एक होता है एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन। आप में से कितने लोग फ्रेशर्स हैं? मतलब फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है, लेट्स से सेट इंडिया बिल्स, या सेकंड होगी मैक्सिमम। मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोग फ्रेशर्स ही होंगे, या 2-3 साल का एक्सपीरियंस होगा। इज दैट सो? नहीं मैम, ज्यादा है। ज्यादा है? सभी को ही ज्यादा है सबसे? नहीं नहीं, बहुत मतलब है 20% तो न्यू है, अदरवाइज सब एक्सपीरियंस। ओके ओके, 20% नहीं है, बाकी सब एक्सपीरियंस है। ओके चलो, ठीक है। सो इस केस में अब जैसे हमारा एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन है और एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन है, ओके। नाउ आप लोग एक पीएफ का हमारा क्या होता है, एक अकाउंट बन जाता है जिसको हम बोलते हैं यूएएन, राइट? यूएन नंबर, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, ठीक है। ये आधार बेस्ड है आजकल, तो हर एक आधार पर एक यूएएन आपका जनरेट होता है, ठीक है। पहले क्या होता था, आधार बेस्ड नहीं होता था ये, तो मल्टीपल यूएएन हो सकता है आपके बन गए हो अगर आप एक्सपीरियंस है। So in case of an employee who have their this multiple UNs, तो उस केस में उनको क्या करना है, मल्टीपल यूएएन के केस में आपको बस अपना जो यूएएन आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करना, उसको आप सरेंडर कर दो, और अपना सारा जो उसका अकाउंट का पैसा है वो आप बेसिकली अपने प्रेजेंट वाले यूएएन में चालू रखो। एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन और एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन। अब प्रोविडेंट फंड में अगर आपका एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूट करता है तो उसको डिडक्शन मिल जाती है, जितना भी कंट्रीब्यूट करता है अंडर सेक्शन 80C, अप टू 1,50,000 तक की डिडक्शन अपने को मिल जाती है, ठीक है। व्हाट अबाउट एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन? एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन को बोला गया है कि मैक्सिमम 12% ऑफ सैलरी तक कॉन्ट्रीब्यूट करे। सैलरी मतलब बेसिक सैलरी। अगर 12% ऑफ सैलरी के ऊपर करा, से 14% करा या कुछ करा, तो जो रिमेनिंग है वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। I will give you an example related to it. So let's take one example related to employer contribution. Let's say there's an individual whose basic salary is 25,000 rupees per month. Okay. HRA is 10,000 rupees per month. Special allowance is, let's say, 5,000 rupees per month. तो मंथ का जो सैलरी हो गया वो 20, 30, 40,000 रुपये हो गया, ठीक है। अब लेस employee contribution towards PF. Let's say employee contribution is rupees
1800 per month. Now let's talk about employer contribution towards PF. Employer contribution towards PF. So it would be, let's say it is मुझे 12% से ज्यादा लेना है, तो 25,000 का 12% कितना होता है? 3,000 1000. So 4,000 ले लेती हूँ, है ना? रुपीज 4,000 पर मंथ. अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि हमारा तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन सेम जाता है ना? तो क्या कुछ डिफरेंस हो सकता है? क्या हो सकता है? कोई दिक्कत नहीं है. ऑल्दो हो सकता है आपकी एचआर मना कर दे कि नहीं सेम ही जाना है, तो वो कंपनी की पॉलिसी हो सकती है. कुछ केसेस में एचआर को पता भी नहीं होता, टू बी वेरी ऑनेस्ट. ठीक है, कि डिफरेंट वैल्यूज भी जा सकती हैं. और कुछ केसेस में, जैसे आई वर्क एज ए पेरोल कंसल्टेंट फॉर वन एंटिटी जिसमें मोर देन 150 एम्प्लॉइज हैं, तो आई हैव टू मैनेज की एक क्राइटेरिया मुझे डिसाइड करना पड़ता है, डिफाइन करना पड़ता है कि सबको सेम ही देना है या सबका सेम ही रखना है. अदरवाइज मेरे लिए वर्किंग करने में भी मुझे दिक्कत आएगी, है ना? तो उस केस में भी हम लोग यही बोलते हुए चलते हैं कि देखो, नहीं, जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स पीएफ एक्सेट्रा वो सेम ही जाएगा. तो इनफैक्ट लेट मी डू वन थिंग. इंस्टेड ऑफ दिस 1800 मैं आपका ये 4000 ही कर देती हूँ. ठीक है, तो एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पीएफ भी 4000 है, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पीएफ भी 4000. ठीक है ना? और आपके हाथ में ऐसे करके जो सैलरी आ गई वो आ गई, लेट्स से 36,000 रुपीज. अब देखो, अब आप क्या करोगे? आप करोगे इनकम अंडर द हेड सैलरी. Can you see basic salary is given? The basic salary is 25,000 rupees per month, which is my 3 lakh. Next is my HRA received. HRA is 10,000 rupees per month. 1,20,000. Facial allowance, it is 5,000 rupees per month. Which is 60,000. Okay. So this is your total salary which you have received, which is 4,80,000 rupees. Now you will check the employer contribution. इसका मैं 12% करूंगी, कितना आएगा? 3,000. 3,000. मैंने कितना जमा कराया है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन? 4,000 रुपए. So can I say this is gap of 1,000 rupees? Yes, ma'am. So what I will do, I will add employer contribution in excess of 12%. Employer का PF contribution in excess of 12%. So which is 4,000 is the contribution, 3,000 should be there. So 1,000 rupees per month multiplied by 12. So 12,000 should be my Taxable. as my taxable income. Okay. So this is your income under the head salary. This is not income under the salary. Let me show. So this is your 4,92,000. Then what you will do, you will reduce your standard deduction. I'm assuming that you are taking the old tax regime. Okay. So for this, it would be 50,000 rupees you will reduce. If say it is new tax regime, then we would take 75,000. So it would be 4,42,000. This is your income under the head salary. From this income under the head salary,
you need to reduce chapter 6A deduction as well. 80C employee PF contribution. एम्प्लॉय का पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? 4,000 रुपीज पर मंथ है, मल्टीप्लाई बाय 12, राइट? तो 48,000 आई विल रिड्यूस। मतलब क्या करना है मुझे? एम्प्लॉय का पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन जो भी है वो तो मुझे 80C की रिडक्शन में चला जाएगा, और एम्प्लॉयर वाला मुझे चेक करना है कि 12% से ऊपर तो नहीं है। सो अगर 12% से ऊपर है तो उसको ऐड कर दो, नहीं तो इग्नोर कर दो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इज दैट क्लियर? यस मैम। ओके, 12% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए इन टर्म्स होगा वैसे तो वो, मतलब जो है, बट क्योंकि डीए नहीं गिवन है इस क्वेश्चन में इसलिए इग्नोर कर दिया, अदरवाइज 12% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए। Okay. So that's how do we solve? So if I reduce the same, it would be 6,000 और 3,94,000 होना चाहिए। ये तो पेन क्यों नहीं? It should be 3,94,000, right? So this is your taxable income, जिस पे आपको टैक्स कैलकुलेट करना है। ऑल्दो इस पे कोई टैक्स बनता नहीं है, बट आई होप इट इज क्लियर कि किस तरीके से हम लोग टैक्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक है? इज दैट क्लियर टू एवरीवन ऑफ यू? यस मैम। यस मैम। Okay. So that's how we calculate about the PF. We will be continuing with our PF discussion in our next session as well. So although ये स्पीड ठीक है क्या? बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि हम सिर्फ एक या दो ही टॉपिक कर पाते हैं, ज्यादा नहीं कर पाते। आई एम नॉट श्योर इफ यू आर एक्चुअली लेट्स से इफ यू वुड वांट मी टू कवर मोर टॉपिक्स इन पर्टिकुलर सेशन, तो मैं स्पीड इंक्रीज करूंगी। Otherwise, if you are okay with this pace, then I would like to continue with it. नहीं मैम ठीक है, क्योंकि बिकॉज अगर स्प्लिटली करेंगे फिर उस हिसाब से कुछ क्लियर ही नहीं होगा चीजें, फिर वो उसका फायदा नहीं। मैम एक सवाल था मेरा ये। जी हेलो। हाँ जी, हाँ जी, ये समझ। हाँ मैम एक सवाल था पीएफ में। अभी आपने कहा ना कि पीएफ 12% करता है, 12% पीएफ करता है, तो एम्प्लॉयर का सेम तो नहीं हो सकता है ना, क्योंकि 12% में 8.3% आपका एम्प्लॉयर की तरफ से करता है, बाकी के 3.67% आपका एम्प्लॉय के बेसिक सैलरी से जाता है, तो वो दोनों सेम तो नहीं हो सकता ना, एम्प्लॉयर का पीएफ। नहीं, मैं बताती हूँ कैसे हमारा पीएफ डिडक्ट होता है। क्योंकि 3.67% है वो ईपीएस में जाता है वो। हाँ, वो ईपीएस में जाता है। एग्री, जस्ट माय पेन इज नॉट वर्किंग टुडे, जस्ट थिंक से। तो मैं वैसे बता देती हूँ, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन तो पूरा जाता है, और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की दो कैटेगरीज होती है, एक होता है पेंशन फंड में, एक नॉर्मल फंड में। तो जो पेंशन वाला बोल रही हो वो 8.67, और जो रिमेनिंग है 8.33 वो मेरा नॉर्मल। सॉरी, उल्टा हो गया ना, 8.33 मेरा पेंशन होता है। समझ में आ रहा है सुमित? हाँ आ गया। हाँ, तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दीजिए। सो एक तरीके से माइंड में अगर मेरे को एक फ्लो चार्ट बनाना है, सो इट वुड बी लाइक दिस, दैट कि मेरा एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इज लाइक नॉर्मल कंट्रीब्यूशन, एंड देन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन को दो कैटेगरीज, पेंशन फंड प्लस द नॉर्मल फंड। ठीक है? ओके, एनी अदर क्वेश्चंस इफ यू हैव? यू आर आस्किंग one more doubt I have, company pay joining bonus that is part of the CTC. What will be the tax treatment of that bonus? Tax treatment वो आपकी taxable income में आ जाती है। ठीक है शिवांश? और क्वेश्चन 1 नंबर 1 वो आपकी taxable income में आ जाती है, तो जितना भी बोनस आपको मिला है वो आ जाएगा। Employee joined the company this summer and left the company says on 1st April. Then how company manages such cases? Signing bond is one way. What are their way? May I know? सपोज करो अगर एक कंपनी की एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो इज एट हायर साइड, इसको हम बोलते हैं एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो। अगर एक एम्प्लॉय ज्वाइन करता है से दिसंबर में, और वो जो छोड़कर है वो चला जाता है से जल्दी 3-4 महीने में। सो नंबर 1, इट इज साइनिंग योर बॉन्ड,
सबसे बेस्ट तो वही है कि आप बॉन्ड साइन करा लीजिए कि आपको 1 ईयर तो से काम करना ही पड़ेगा मिनिमम। और मेन बॉन्ड का ही लोग करते हैं, ठीक है? या मेन तो बॉन्ड का ही चलता है कि बॉन्ड आप करा सकते हो। अदरवाइज़ टू बी वेरी ऑनेस्ट बॉन्ड मतलब वही है ना कि जाने वाले को कौन रोक सकता है? तो मतलब अ मेरा अगर बॉन्ड का है उसमें आप वो डाल सकते हैं टर्म्स एंड कंडीशन दैट द एम्प्लॉयी हैज़ टू पे बैक दिस मच मनी जाने से पहले। सम टर्म्स एंड कंडीशन वी कैन पुट देन ऑब्वियसली एम्प्लॉयी टर्नओवर रेशियो कैन बी रिड्यूस्ड अकॉर्डिंगली, ठीक है? So do you all have any other questions? Okay, thank you everyone. Take care and let's meet in our next session.